ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے، اور اس کے فضائل و مناقب اور خصوصیات میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیات کے علاوہ یہ پوری صورت مکہ مکرمہ میں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور اس انداز سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس انداز میں یہ سورہ مبارکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر مضامین شرک کی تردید کے حوالے سے ہوں گے، بلکہ مفسرین اکرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ دنیا میں مختلف رہے۔ ان میں ایک فرقہ ہے صابی فرقہ۔ صابی فرقے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کو ماننے والے اپنے آپ کو صابی کہتے ہیں، اور ایک جو راجح ترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ ہے وہ صابی فرقے کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی اس میں آتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ بہرحال یہ صابی لوگ مشرک لوگ تھے، اور اس وقت دنیا میں مختلف جگہ پر یہ صابی لوگ آباد ہیں۔ ان میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے چائنا، یہ سارے کا سارا صابی فرقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں آریہ فرقہ یہ صابی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایران میں دیکھیں تو وہاں پر مجوسی ہیں، وہ بھی صابی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ مغربی ممالک میں دیکھیں تو رومی ہیں، یونانی ہیں، یہ سب صابی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان سب کا نظریہ شرکیہ ہے، اور اس قدر شرک پایا جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھ لیں کہ یہاں کے جو ہندو ہیں وہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ مجوسی لوگ جو ہیں یہ 2 خالق مانتے ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ یزدان کو خالق خیر مانتے ہیں اور اہرمن کو خالق شر مانتے ہیں۔
इसी तरह से बाकी लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम को नाज़िल फरमाकर इसमें शिरक की तरदीद फरमाई और लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई जो शिरक करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, और बनाया अंधेरों को, ज़ुलुमात जमा है, वन नूर, और रोशनी को, सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर भी ये काफिर लोग अपने रब के साथ औरों को बराबर करते हैं। ये अल्लाह का अंदाज़े कलाम है कि तारीफ़ें सारी अल्लाह की ज़ात की। आसमानों को पैदा करने वाला अल्लाह, ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह, अंधेरों को पैदा करने वाला अल्लाह, नूर और रोशनी को पैदा करने वाला अल्लाह, और फिर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर भी ये काफिर लोग अपने रब के बराबर शरीक ठहराते हैं। कि सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात और जिनको उसके मुकाबले के अंदर शरीक ठहराया जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया और उठा के अल्लाह के बराबर उनको माबूद मानना शुरू कर दिया। यहाँ पर समावात जमा का लफ्ज़ लेकर आए और वल अर्ज़ा ज़मीन मुफरद लेकर आए। हालांकि जिस तरह आसमान सात हैं इसी तरह ज़मीनें भी सात हैं। तो उसकी वजह यह है कि आसमान सात अपनी बनावट और नक्शे के एतबार से अलग अलग हैं, और ज़मीन को मुफरद इसलिए लेकर आए कि सातों ज़मीनें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। इसके बाद वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, ज़ुलुमात ज़ुल्मतुन की जमा है, अंधेरे को कहते हैं, कई अंधेरों को ज़ुलुमात कहते हैं, और उसके मुकाबले में नूर, रोशनी। अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं जुल्मत का खालिक भी मैं, नूर रोशनी का खालिक भी मैं, लेकिन कई अंधेरे इकट्ठे हो जाएं और उसके मुकाबले में एक रोशनी अल्लाह की दी हुई ये काफ़ी हो जाती। दूसरा मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जुल्मत बहुत है, कहीं हिंदुओं की अपनी जुल्मत है, कहीं सिखों की अपनी जुल्मत है, कहीं यहूदियों की अपनी जुल्मत है, और कहीं ईसाइयों की जुल्मत है, और उसके मुकाबले में दीन इस्लाम का नूर एक चिराग है जो सबके बराबर खड़ा है। सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज़ अल्लाह ने इख्तियार फरमाया कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद फिर भी अपने रब के बराबर शरीक ठहराते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने पैदा किया तुम्हें मट्टी से। एक तो इशारा हमारे वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, उनको अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया और बाकी सब को उनसे आगे सब असबाब बनाते हुए पैदा किया। और दूसरा, हर इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया। इंसान की पैदाइश का जो सबब बनता है पानी का नुत्फ़ा, उसका जो पीछे वजूद है सारा वो मट्टी के ज़रिए होता है। खुराक बनता है, उसके वजूद का ज़रिया खुराक बनती है, और खुराक सारी मट्टी से पैदा होती है। गंदम देख लो, बाकी ये फ्रूट देख लो, कोई चीज़ भी देख लें तो एक वक़्त पीछे हम चलते हैं तो ये हमें मट्टी नज़र आते हैं, और उस मट्टी से अल्लाह ताला ने खुराक बनाई, ग़ज़ा बनी, फिर उससे पानी का नुत्फ़ा बना, फिर इंसान बन गया। गोया कि इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा फरमाया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया है। अल्लाह के समझाने का अंदाज़ देखिए। अल्लाह इंसान को समझाना चाहते हैं, ओ लोगो कहाँ खड़े हो, कहाँ बह के जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, देखो तो सही, मैं रब ने तुम्हें भी पैदा किया है। आसमानों को मैंने पैदा किया, ज़मीनों को किया, जुल्मत को किया, नूर को पैदा किया। अगर वहाँ तुम्हें दलाइल नज़र नहीं आते तो अपने अंदर ही देख लो। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। देखो तो सही मट्टी का वजूद क्या था, उसकी हैसियत क्या थी, जिस मट्टी से अल्लाह ने इतना खूबसूरत इंसान पैदा फरमा दिया। उस मट्टी को अल्लाह ताला ने रंग लगाया और उससे इतना खूबसूरत इंसान बन गया।
सुम्मा क़ज़ा अजला, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ज़ा अजला, फिर एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, सुम्मा फिर क़ज़ा अजला, एक मुकर्रर मुद्दत कर दी कि एक इतनी मुद्दत तक ये इंसान दुनिया में रहेगा, फिर इसके ऊपर मौत आएगी। व अजलुम मुसम्मन इंदहु, और एक दूसरी मुद्दत भी मुकर्रर है इंदहु, उस अल्लाह के पास। वो मुद्दत कौन सी है? जी कर दोबारा उठने की, जिंदा होकर दोबारा उठना, क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना, ये है वाजलुम मुसम्मन इंदहु, अल्लाह के नज़दीक एक मुद्दत और मुकर्रर है। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हमारा खालिक कौन है, फिर तुम्हें पता नहीं चल रहा हमारा माबूद कौन है। कहाँ खड़े हो, किस तरफ भागे जा रहे हो? फिर अल्लाह ने शुरू फरमाया वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, अल्लाह की ज़ात, वही अल्लाह की ज़ात है आसमानों में, व फिल अर्ज़, और वही अल्लाह की ज़ात है ज़मीनों में, यालमु सिर्रकुम, वही अल्लाह की ज़ात है, यालमु, वो जानता है, सिर्रकुम, तुम्हारी छुपी हुई चीज़ों को, व जहरकुम, और तुम्हारी जाहिर की हुई चीज़ों को। ये अल्लाह के पास कुदरत है, वो तुम्हारी छुपी हुई चीज़ों को भी जानने वाला, तुम्हारी जाहिर चीज़ों को भी जानने वाला। व यअलमु मा तक्सिबून, और जो तुम कमा रहे हो अल्लाह उसको भी जानता है। नेक अमाल कमा रहे हो अल्लाह उसको भी जानता है, बुरे अमाल कमा रहे हो अल्लाह उसको भी जानता है। अरे दुनिया वालों, देखो तो सही, अल्लाह ने तो बनाया था अपनी इबादत के लिए, और तुम खड़े हो गए गैरों के दर पर। जो गैरों के दर पे जाते हैं वो अल्लाह के दर पे सजदा करने के लिए तैयार कभी नहीं होते। शिरक ऐसी नापाक और पलीद चीज़ है कि जो शिरक करना शुरू कर देता है अल्लाह उससे अपने सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, अल्लाह उससे अपने घर आने की तौफीक छीन लेते हैं, अल्लाह उससे अपनी बंदगी की तौफीक छीन लेते हैं, जब तक वो शिरक से तौबा नहीं कर जाता। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, नहीं आई इनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, इसके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर ये लोग उससे एराज करने वाले थे, मुंह मोड़ने वाले थे। कुरान पाक बातें कर रहा है दूसरे लोगों की, लेकिन ज़रा अपना तर्जिया करके देखें हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह का हुक्म आता है, दीन इस्लाम का हुक्म हमें सुनाया जाता है कि जनाब मेरे घर के अंदर शादी का मौका है, और अल्लाह का हुक्म ये है। कभी हम अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को सामने खड़ा करके उस हुक्म को रौंद के रख देते हैं, और कभी बरादरी की चाहत और मनमानी को सामने रखते हुए उस हुक्म को पाँव के तले रौंद के रख देते हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वमा तअतीहिम मिन आयतिन, नहीं आया उनके पास, मिन आयतिन, कोई हुक्म, मिन आयाति रब्बिहिम, उसके रब के हुक्मों में, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर वो लोग उससे एराज करने वाले थे। एक ये तर्जमा है, और एक तर्जमा वमा तअतीहिम मिन आयतिन, नहीं आई उनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, उसके रब की निशानियों में, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर वो लोग उससे मुंह मोड़ने वाले थे, एराज कर देने वाले थे। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़, इतना एराज किया कि उन्होंने हक को जुटला दिया। लम्मा जाअहुम, जब भी आया उनके पास, फसौफ़ यअतीहिम, अनकरीब आएंगे वो, अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, आएगी उनके पास। अंबाउ कहते हैं हकीकत को, हकीकत खुल जाएगी, पर्दे उठ जाएंगे, ज़ाहिर हो जाएगा। इंसान जब तक दुनिया में अपनी ज़ुबान चलाकर लोगों को खामोश करता है, कभी अपना हाथ चलाकर लोगों के ऊपर दबदबे डालता है, कभी रौब जमाता है, कभी तकब्बुर के दंदाने फेरता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन जब मौत आकर पकड़ती है, मौत आने से पहले इंसान के दुनिया के पर्दे बंद होना शुरू हो जाते हैं, आखिरत के पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं, और आलम बरज़ख उसको सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। और उस वक़्त उसके किए हुए अमाल ढेरों के ढेर उसको सामने नज़र आते हैं। अगर नेक अमाल हैं खुशबुओं के ढेर नज़र आएंगे, और अगर बुरे अमाल हैं तो आग के बढ़े हुए अंगारों के ढेर उसको सामने नज़र आएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ, अनकरीब आएगी उसके पास हकीकत,
मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लोगों को आकर दावत दी, लोगों ने मजाक उड़ाया। अम्बिया ने कहा देखो मजाक उड़ाते हो, तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, तुम्हें मरने के फ़ौरन बाद अजाब में पकड़ा जाएगा। आगे से मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ने फरमाया जैसे ही इनको वक़्त आएगा तो इनके सामने जब अजाब आएगा वो अजाब आकर इनको पकड़ेगा जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, क्या नहीं देखते वो, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, कितनों को हमने हलाक कर दिया इनसे पहले, मिन क़र्निन। कर्न किसको कहते हैं? कर्न का एक माना है उम्मत, जमात। तर्जमा क्या होगा? इनको पता नहीं इनसे पहले हमने कितनी जमातें हलाक कर दी, कितनी कौमें तबाह बर्बाद कर दी। ये पहले दुनिया में नहीं आए, इनसे पहले कितने सेक्शन दुनिया में चले गए, कितनी जमातें दुनिया में गुजर गईं, उनका रिजल्ट ख़राब था। हमने इनको पकड़ा, हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अजाब ने दबोच लिया। आज इनकी बारी आई, इनको पता नहीं पिछलों के साथ क्या हुआ है। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, क्या नहीं देखा उन्होंने कितनों को हमने हलाक कर दिया इनसे पहले, मिन क़र्निन, जमातों को, उम्मतों को। मक्कन्नाहुम, हमने उनको जमा दिया था, फिल अर्ज़ी, इस सरजमीन में, मा लम नुमक्किन लकुम, जितना हमने तुम्हें नहीं जमाया। हमने उनको दुनिया में ऐसी भरपूर ताकत दी थी, ऐसी ताकत तो तुम्हें भी नहीं दी। हमने उनको दुनिया का ऐसा माल दिया था, ऐसा तो तुम्हें भी नहीं दिया। हमने उनको दुनिया में इज्जत और जाहो जलाल ऐसा दिया था, ऐसा पुख्ता किया था। मा लम नुमक्किन लकुम, ऐसा तो तुम्हें भी नहीं किया। व अरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा, और हमने छोड़ दिया था आसमान से उन पर मिदरारा, लगातार बरसता हुआ पानी। वजअलनल अनहारा, और हमने बना दी थी नहरें, तजरी मिन तहतिहिम, जो चलती थी उनके नीचे से। ऐसे ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें चल रही हैं, क्या क्या दुनिया में अल्लाह ने उनको अता फरमाया था, कैसी कैसी बारौनक चीज़ें अता फरमाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनको हलाक कर दिया उनके गुनाहों की वजह से। आज दुनिया के अंदर किसी के पास 4 टके आ जाएं तकब्बुर करता है, किसी के पास मकान बन जाए तकब्बुर करता है, किसी के पास गाड़ी आ जाए तकब्बुर करता है। अल्लाह फरमाते हैं कहाँ खड़े हो? पिछले वाक़यात तो पढ़ के देखो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला जितना पहलों को मिला था। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। वअंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन, और हमने पैदा कर दिया उनके बाद दूसरी जमातों को, दूसरी उम्मतों को उनके बाद पैदा कर दिया। वो कहाँ कर चले गए, खाक में मिल गए, कोई पता नहीं उनका किधर से किधर चले गए। दूसरे इंसान उनकी जगह पे आकर खड़े हो गए। ये तो दुनिया का निज़ाम है अल्लाह का, ये निज़ाम क़यामत तक नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये कर्न का एक माना किया गया जमात, उम्मतें। कर्न का एक माना ये है कि ये मुद्दत की तरफ इशारा है। 10 साल से लेकर 100 साल तक, एक रवायत में 120 साल तक इसको कर्न कहते हैं। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून कर्नी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। तो कर्न से मुफस्सिरीन इकराम, मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम ने फरमाया है कि कर्न से मुराद 100 साल, तो खैरुल कुरून कर्नी, पहले कर्न से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो सहाबा इकराम को मिला, 100 साला ज़माना, यह खैरुल कुरून कर्नी। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर अगला 100 साल ताबिईन का ज़माना। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम,
फिर अगला 100 साल का ज़माना जो तबा ताबीन का था वो कर्न के अंदर शामिल हो गया। ये है कर्न। तो क्या तर्जुमा होगा? अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, ओ लोगों देखो तो सही, क्या तुम देखते नहीं, क्या वो देखते नहीं कितनों को हमने हलाक कर दिया इनसे पहले। मिन क़र्निन, कितने सालों वाले लोगों को हलाक कर दिया। सालों के साल रहने वाले लोग दुनिया के अंदर, उनको हमने हलाक कर दिया। वजह क्या बनी? फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, गुनाहों के सबब उनको हलाक कर दिया। व अंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन, और हमने उनकी जगह दूसरी कौमें लाकर खड़ी कर दी। अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, इसलिए कभी अपनी जवानी पर घमंड मत करो, अपने माल पर घमंड मत करो, अपने इल्म पर घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह तुम्हें ले जाएंगे और किसी और को तुम्हारी जगह खड़ा कर दे। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दावत व तबलीग फरमा रहे हैं। मक्के का एक सरदार है अब्दुल्ला बिन उमैया, कहने लगा मैं तो नहीं मानूंगा कुरान को जब तक आसमान से मेरे नाम का लिखा हुआ एक रुक्का नहीं आ जाता अल्लाह की तरफ से, कि उसके ऊपर लिखा हो अब्दुल्ला बिन उमैया के नाम से रुक्का हो, और वो रुक्का मुझे पैगाम दे रहा हो कि ये मेरा नबी है, इसकी बात मानो, ये मेरा कुरान है, इसकी बात मानो। जब तक अल्लाह की तरफ से मेरे नाम डायरेक्ट ख़त नहीं आता मैं नहीं मानूंगा। और फिर आगे क्या कहने लगा? अगर आ भी जाए तो मुझे तो नहीं उम्मीद कि मैं मान लूंगा फिर भी। अल्लाह ने फरमाया वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन, अगर हम नाज़िल फरमा दें आप पर किताबन लिखा हुआ, फी क़िरतासिन कागज़, लिखा हुआ कागज़ नाज़िल हो जाए, ये देख कहेंगे जादू है। फलमसूहु बिअयदीहिम, फिर ये मस कर लें उसको अपने हाथों से, छू के देख लें कि वाकई जादू नहीं, ये तो असली कागज़ है। तो फिर भी लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कहेंगे ये काफिर लोग, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो वाज़ेह जादू है। जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, जिसने मानना है उसने कुरान पाक को डायरेक्ट मान लेना, जिसने नहीं मानना उसने तरह तरह के एतराज़ करने हैं। ये था अब्दुल्ला बिन उमैया। और बाद में अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह ने इनको तौफीक दे दी, इस्लाम ले आए और फिर एक गज़वे के अंदर ये शहीद हो गए। अगली आयत मुबारका वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन। अब 3 सरदार हैं मक्के के, एक का नाम अब्दुल्ला बिन उमैया, वही पहले वाला, दूसरे का नाम नज़र बिन हारिस, तीसरे का नाम नौफल बिन खालिद। ये 3 बड़े सरदार हैं मक्के के, और कहते हैं मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जनाब हम कुरान पाक को तब मानेंगे जब आसमान से 4 फरिश्ते नाज़िल हों, आसमान से 4 फरिश्ते आएँ और वो आकर हमसे गुफ्तगू करें और हमें बताएं, तो तब मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों को देखने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि फरिश्ते आ जाएं अपनी असली हालत में, वो तो इनके पास ताकत ही नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकते ये फरिश्तों को अपनी असली हालत में। और दूसरी सूरत ये है कि फरिश्ते अपनी असली हालत में ना आए बल्कि इंसानी शक्ल में आ जाएं। तो फरिश्ते अगर इंसानी शक्ल में इनके सामने आ जाते हैं तो फिर ये कहेंगे कि हम कैसे माने फरिश्तों की बात को, हमें तो पता ही नहीं इंसान है कि फरिश्ते हैं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन, और कहते हैं क्यों नहीं उतारे गए उन पर फरिश्ते, फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया उन पर। वलौ अंज़लना मलकन, अगर हम नाज़िल कर दें कोई फरिश्ता, लक़ुज़ियल अम्रु, तो फ़ैसला हो जाएगा किस्से का, सुम्मा ला युनज़रून, फिर मोहलत नहीं दी जाएगी। क्यों? अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ा मांग रहे हैं, अपनी मनमानी दलील मांग रहे हैं। और मेरे अल्लाह का कानून ये है कि जब किसी नबी से मनमानी दलील मांगी गई, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ा माना गया, तो वो आखिरी दलील और मौजज़ा होता है,
مان لیں گے تو خیر، نہیں مانے تو اسی وقت عذاب آتا ہے اور بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نازل کر دیتے ان کی خواہش کے مطابق فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو قصے کا فیصلہ ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، مہلت نہ دی جاتی ان کو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بھیج دیتے ان کے پاس مَلَكًا، کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بناتے اس کو آدمی، ظاہر ہے وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر کیا ہوتا کہ یہ شبے میں پڑ جاتے اس کے بارے میں، ایسے ہی جیسے اب شبے میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، تحقیق، البتہ تحقیق، استہزیہ مذاق اڑایا گیا، برسول، رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، فحاق بالذین سخروا منہم، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا، اسی مذاق نے، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی مذاق نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان لوگوں کو اسی مذاق نے ہی گھیرے میں ڈال لیا۔ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب نے ان کو گھیرے میں ڈال دیا۔ قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان کو کہا مکے والوں کو چلو، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جا نہیں سکتے، کتابیں پڑھ کے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور اس سے تم بھی عبرت حاصل کر لو، آج تمہارے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔